No. All right. Recording in progress. Yes. नहीं नहीं, सिर्फ ये कांस्टेंट नाम देखो ना, मेडलर कांस्टेंट इज देयर ना, सो ओनली दिस कांस्टेंट इज नोन एज द मेडलर कांस्टेंट. ऑलराइट. ओके. सो नाउ यहां तक क्लियर है ना सबको? चलो अब बात करते हैं. लेट्स डिस्कस द. अच्छा हाँ, इसको शो किससे करते हैं पहले तो मैं आपको ये बता दूं. दिस इज कंप्लीटली शोन बाय व्हाट, द मींस द एक्सप्रेशन इज अल्फा. अल्फा से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है ना. सो बेसिकली इट इज गिवन एज दैट u of r is equals to minus alpha times e square upon 4 pi epsilon naught times r. This is our relation of energy where alpha is known as the Madelung constant. This is a Madelung constant. Clear? Now, I am going to take an example for the one-dimensional crystal lattice, or you can say one-dimensional lattice chain. One-dimensional lattice chain. देखो बात ये है ना कि अभी तक till this year the question has been only asked from the potential. ठीक है ना, जैसे मैंने कल क्वेश्चन कराया था ना, that type of question today also I have sent the 2 question to you. अभी तक ऐसे ही क्वेश्चन 3 और 4 बार पूछे गए हैं, बट नॉट इन अ जैम में शायद नहीं भी पूछा गया है, ठीक है ना. नेट में और डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए. सो मुझे ऐसा लगता है, इट्स माई गट फील, कि अगर वो इस टॉपिक में एक स्टेप ऊपर जाएंगे in an exam, so they can ask about the Madelung constant for the one-dimensional lattice change, for the two-dimensional square lattice, and for the three-dimensional, that is NaCl. ये मुझे ऐसा लगता है. So that's why I am going to discuss this one by one. ठीक है ना. बाकी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल का रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन. ओके, बस यही सब, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता इससे. All right, so let's see what they ask about from this chapter. So basically I'm going to discuss the one dimensional lattice chain. Okay, so first just draw this chain. First just draw this lattice chain. कैसे बनेगा ये? Actually I am taking this part from the Charles Kittel. Okay, मैं Charles Kittel से ये पार्ट ले रहा हूँ, अगर किसी को देखना है तो वहां से जाके देख सकता है, ठीक है. All right, so this is our what, one dimensional lattice chain, ठीक है ना. Now see, obviously we know that there will be minus, plus, minus, plus, minus, plus and minus. Is this type of means ions will be arranged. कुछ ऐसे आयन अरेंज होंगे. भाई वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, कोई और डायरेक्शन तो इसका होना नहीं है. ओके, now choose any ion as your reference ion. I am choosing this negative ion as our reference ion. Okay, so I am taking this ion as our reference ion, and let's suppose this distance is, let's suppose this is r. Okay, all right. मतलब यही डिस्टेंस r नहीं है, हर एक के बीच में डिस्टेंस कैसी है, मतलब इक्वल सेपरेशन पे रखे हुए हैं, एंड द सेपरेशन इज r. नाउ जस्ट टेल मी गाइस, what will happen, what should be the potential energy, what should be the potential energy on this ion due to, first tell me due to this ion, इस ion की वजह से इस पे कितना potential energy आना चाहिए? माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स r, यही आना चाहिए. ओके, can I write this potential energy similarly same for this ion also? भाई यही तो इसके लिए भी आएगा ना, दे आर एट द सेम डिस्टेंस. भाई इनके बीच की भी डिस्टेंस कितनी है, r ही है. दे आल्सो आर एट द r डिस्टेंस.
So can this amount of energy, potential energy, will also come for this ion? Okay, ठीक है ना. अच्छा, माइनस कैसे हो रहा है पता है ना, एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस. Okay, that's why minus e square is coming. All right, so can I write this like plus, due to this ion what will happen, minus e square upon 4 pi epsilon naught times r. All right, so can we write like that, minus 2 times e square upon 4 pi epsilon naught times r. ये होगा. You should name this as NN. इसको NN नाम दो. NN stand for nearest neighbor ions. ठीक है ना. This is NN. Equation number 1. Now, what should be the U of R for the second nearest neighbor ion? Second nearest neighbor ion के लिए क्या होना चाहिए? हाँ, सिर्फ R का चेंजेस होगा या और भी कोई चेंज होगा? सिर्फ R का ही चेंज होगा. चार्ज प्लस नहीं हो जाएगा, चार्ज विल ऑल्सो बी प्लस. दिस इज माइनस, दिस इज अवर सेकंड नियरेस्ट नेबर आयन, सो माइनस माइनस प्लस, सिमिलरली माइनस माइनस प्लस. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट U S N N, ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी प्लस ट्वाइस ऑफ E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ट्वाइस ऑफ R. क्या यही होगा? ऑलराइट, व्हाट विल बी द थर्ड नियरेस्ट नेबर आयंस? उसकी वजह से क्या इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगा? U ऑफ R फॉर TNN. ये कितना होगा? माइनस अगेन. ओके भाई, तीसरे नियरेस्ट नेबर पे जाओगे, दैट इज प्लस, अपोजिट आयन, प्लस माइनस माइनस, सिमिलरली प्लस माइनस माइनस. So it will be minus twice of E square divided by 4 pi epsilon naught times 3 of R. This will be our equation number 3. And this, like this, all the series will go on. ऐसे ऐसे करके पूरी सीरीज चलती चली जाएगी. यहां तक क्लियर है? Now see what happens. We have to just add all the potential energy. सारी potential energy को ऐड करो. नेट हमें निकालना है ना, पूरी लैटिस की वजह से निकालना है ना, एक आयंस पर बेसिकली निकालना है. We have to find the total net potential energy on this ion. So it will be the sum of all the potential energies. So basically the U of R, ये कितना हो जाएगा? U of R will be this plus this plus this and so on. That is minus twice of E square by 4 pi epsilon naught times R plus twice of E square divided by 4 pi epsilon naught times twice of R, right? And also थर्ड टर्म भी आ जाएगा, right? Minus twice of E square 4 pi epsilon naught times twice of R. ऐसे ही चौथा टर्म्स क्या मिलेगा हमें? Twice of E square 4 pi epsilon naught times 4 of R and so on. यही होगा, यही होगा. ठीक है. Now just see the expression of Madelung constant. Madelung constant के एक्सप्रेशन को आप देखो जरा. कॉमन क्या लेना है हमें? What we have to take the common? माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर. इसको कॉमन ले लो और जितने कांस्टेंट हो सबको अंदर भेजो. देखो क्या आ रहा है. ओके, सो U of R, this will be take minus E square upon 4 pi epsilon naught R as common. 2 also take 2 as a common. उसको भी कॉमन ले लेते हैं. ठीक है ना, इसके साथ नहीं ले रहे हैं, बस बाहर से कॉमन ले रहे हैं. अच्छा, कितना आएगा अंदर? इट विल बी 1 बाई आर. नहीं, आर तो आ गया ना बाहर. 1 माइनस
1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 एंड सो ऑन, यही आएगी इसकी सीरीज। ऑलराइट, क्या कोई बता सकता है ये कौन सी सीरीज है? इसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता है सिर्फ इतनी की जगह पे? दिस वन, ये किसकी सीरीज है? कैन एनीवन टेल? हाँ, what should be the series of ln 1 plus x? ln 1 plus x, ln 1 plus x कितना होता है? 1 माइनस x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 माइनस x टू द पावर 4/4। If we put the x is equal to 1 here, तो हमें ये सीरीज मिल जाएगी। ओके, दैट मीन्स इतने की वैल्यू कितनी हो गई? ln 2। Put x equal to 1 here, that is log of 2, यही होगा ना? इतने की वैल्यू जो है सीरीज की वैल्यू 2 की वैल्यू है, 2 की बात नहीं कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट द 2, दिस फैक्टर, दिस शुड बी इक्वल टू ln 2। क्लियर है? So basically for the one dimensional chain, what we are getting? We are getting as u of r is equal to minus e square upon 4 pi epsilon naught times r 2 ln 2, right? So tell me, what is the value of Madelung constant here? What is the value of Madelung constant? It is alpha is equal to 2 ln 2. This you have to learn or you have to practice. ठीक है ना? मेरा गट फील पता नहीं सही है नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है अगर एक स्टेप भी अगर एग्जामिनर ऊपर गया ना, ही विल आस्क, देखो 2 डायमेंशन में वो नहीं जाएगा, बिकॉज द कैलकुलेशन ऑफ 2 डायमेंशन इज लिटिल बिट ऑफ लेंथी एंड कैलकुलेशन ऑफ 3 डायमेंशन इज क्वाइट लेंथी। मैं आपको तरीका बता दूंगा, यू कैन ऑल्सो फाइंड दैट, but yes, they can ask about the one dimensional chain lattice that tell us that what should be the Madelung constant for the one dimensional lattice. Okay, so the Madelung constant comes out to be twice of ln 2. Clear है सबको? ठीक है ना? इसी को हमें फाइंड आउट करना था। Alright, this is the Madelung constant for one dimensional lattice. Now let's solve for the two dimensional lattice. किसी को कोई डाउट है इसमें? Anyone? चलो, let's solve for the two dimensional lattice, that is two dimensional square lattice. We will solve for the two dimensional square lattice. What should be the heading? Madelung constant for two dimensional square lattice, right? Two dimensional square lattice, इसको देखते हैं। कॉन्सेप्ट वही यूज करना है, वी हैव टू यूज द सिमिलर कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ जस्ट ड्रॉ द लैटिस पॉइंट फर्स्ट। लैटिस पॉइंट बना लेते हैं, इसके लैटिस पॉइंट थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा, है ना? और ये सब सेम डिस्टेंस पे होंगे, है ना? ओके, एक और बना लो एंड कंप्लीटेड। इलेक्ट्रॉन और मींस इलेक्ट्रॉन नहीं, just show the negative and positive ions, that is minus, plus, minus। देखो इसको समझना है ना, तो ये ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट? एक और बना लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड माइनस।
ऑलराइट, नाउ व्हाट वाज आवर स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा? चूज द ओरिजिन, ठीक है ना, चूज द ओरिजिन। किसी एक को ओरिजिन चूज करो। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग दिस माइनस आयन, दिस माइनस आयन एज अवर ओरिजिन। आप किसी को भी ले सकते हो, ठीक है ना, उससे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ऑलराइट, दिस इज अवर रेफरेंस आयन एंड ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितनी है? r, एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो r। क्लियर है? यहां तक डायग्राम सबको समझ में आया? ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट टू फाइंड आउट द व्हाट? मेडलन कांस्टेंट। कैसे होगा? What we have to do basically, we have to find the potential energy on this ion due to all other ions, ठीक है ना। इस आयंस पर हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है बाकी आयंस की वजह से। बाकी आयंस की वजह से कैसे करेंगे? फर्स्ट टेल मी व्हाट शुड बी द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस पॉजिटिव आयन। इसकी वजह से कितना होगा? ऑब्वियसली अभी हमने फाइंड आउट किया है। You write it like this, u r n n, that is nearest neighbor। कितना हो जाएगा? 2e स्क्वायर होगा या और कुछ होगा? 4 आएगा, 4 आएगा भाई। एक ऊपर भी एक नीचे भी तो है, ठीक है ना। क्लियर है सबको? इस बार 2 नहीं होगा, इस बार 4 होगा, ठीक है ना। सी, 1 at this side, 1 at this side, 1 at upper side and 1 at lower side, ठीक है ना। दिस विल बी योर नियरेस्ट नेबर। अच्छा, माइनस क्या होगा? oh, सॉरी, साइन क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, ओके, बिकॉज दे आर द अपोजिट आयंस। सो इट विल बी माइनस ई स्क्वायर, और यू कैन से 4e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स r, okay। this is our what? Nearest neighbor potential energy due to the nearest ion। now find out for the second nearest ion, second nearest neighbor ions। क्या होगा बताओ? what should be the potential energy? हाँ, एक बार फिर से बताना। √2r, यस एग्जैक्टली। अच्छा, वो कौन से होंगे ये देखो, मैं दिखा देता हूं। ये डायगोनल के साथ बनेगा इस बार। एक ये होगा, एक ये होगा, वन दिस वन एंड दिस वन, ठीक है ना। ये चार जो होंगे ये सेकेंड नियरेस्ट आयन होंगे। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस? √2r। स्क्वायर लैटिस कंसीडर किया है ना, दिस डिस्टेंस विल बी √2r। सो व्हाट शुड बी द पोटेंशियल एनर्जी? u of r for s and n second nearest neighbor, it should be equal to, प्लस होगा माइनस होगा? प्लस होगा ना, एक दोनों ही माइनस है, यस। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स व्हाट? √2r। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फाइंड आउट फॉर द थर्ड नियरेस्ट आयन, फाइंड आउट फॉर द थर्ड नियरेस्ट आयन। फाइंड आउट करो सब लोग, देखो कितना आएगा। एग्जैक्टली जो तीसरा नियरेस्ट होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा? पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। द थर्ड नियरेस्ट विल बी प्रेजेंट एट व्हाट डिस्टेंस? 2r डिस्टेंस पे होगा ना, ये वाला, दिस वन। और यू कैन से लाइक दिस, एक ये होगा और एक क्या होगा? एक ये होगा 2, और एक ये वाला होगा, दिस वन and this one। all right, there will be total 4 second or third nearest neighbor ions। and what should be the sign कैसा होना चाहिए? प्लस और माइनस? प्लस। u of r of t and n, it should be equal to plus 4e square divided by 4 pi epsilon naught times what? 2r। जल्दी से जरा फोर्थ नियरेस्ट नेबर बता दो, फिर सॉल्व करते हैं इसको। व्हाट शुड बी द फोर्थ नियरेस्ट नेबर आयन? कितने डिस्टेंस पे होगा? √5r, √5r पर होगा,
ठीक है ना, रूट 5r पर होगा। देखो कैसे, दिस इज अवर रेफरेंस, ठीक है ना। रूट 5r तक कैसे पहुंच सकते हो, कौन सा होगा, दिस वन। मैं इसको दूसरे पेन से बना देता हूं, ठीक है ना, व्हाइट से ही बना देता हूं। दिस आयन, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, देखो निकाल के भाई, आर आर और यहां से आर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4r² प्लस आर, दैट इज अंडर रूट 5r। सबको क्लियर है एवरीवन? व्हाट? फॉर द फोर्थ नियरेस्ट आयन, हाँ देखो मैं ये कह रहा हूं कि वी गॉट अवर नियरेस्ट नेबर आयन, वी गॉट अवर सेकंड नियरेस्ट आयन, वी गॉट अवर थर्ड नियरेस्ट आयन। आई एम आस्किंग फॉर द फोर्थ नियरेस्ट आयन, जिससे सीरीज थोड़ी सी ना अच्छी दिखने लगेगी। व्हाट शुड बी द फोर्थ नियरेस्ट आयन? तो इसके बाद जो नेक्स्ट आयन होगा दैट विल बी प्रेजेंट एट अंडर रूट 5r डिस्टेंस। तो ये अंडर रूट 5r आप यहां कैसे पहुंच सकते हो, देखो r यहां तक है, यहां तक है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r। एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस, r। यूज द पाइथागोरस हियर, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4r² प्लस r², दैट इज 5r², दैट इज रूट 5r। ओके, सो दिस डिस्टेंस विल बी अंडर रूट 5r। क्लियर है सबको, क्लियर है? ओके, सो टेल मी हाउ मेनी, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फोर्थ नियरेस्ट नेबर आयन, कितने होंगे, 8। 8 सबको क्लियर है, 8 कैसे हो रहा है? देखो एक ये हो गया, मैं दिखा देता हूं यहां पे, ठीक है ना, एक तो ये हो गया। अच्छा, अपोजिट आयन मिल रहे हैं, वी आर गेटिंग द अपोजिट आयन, राइट। आवर रेफरेंस इज माइनस आयन एंड वी आर गेटिंग द पॉजिटिव आयंस एट आवर फोर्थ नियरेस्ट नेबर आयन। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और कौन सा आएगा, one should be this one, this should also be at the root 5r distance, right? And similarly this should also be present at the root 5r distance। और कौन सा जाएगा रूट 5r पे, ये आएगा रूट 5r पे, और कौन सा आएगा, ये आएगा, है ना। कितने हो गए, 6 हो गए, 2 और आएंगे, दिस वन, एक ये आएगा और एक ये आएगा। क्लियर है सबको? दिस विल बी 8 एज फोर्थ नियरेस्ट नेबर आयन, ठीक है ना, दिख रहा है? अरे किसी को कंफ्यूजन है तो डिस्टेंस निकाल के देख लो ना, सिंपल पाइथागोरस लग रहा है। ऑलराइट, सो व्हाट शुड बी द पोटेंशियल एनर्जी एज फोर्थ नियरेस्ट नेबर आयन, क्या होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, बताओ। मैं यहां पे लिख देता हूं u ऑफ r एज FNN। FNN कितना आ जाएगा, माइनस होगा प्लस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, प्लस कहां से होगा, माइनस रेफरेंस है, प्लस तक पहुंच रहे हो ना, माइनस होगा, -8e² डिवाइडेड बाय 4πε0 टाइम्स अंडर रूट 5r। This is equation number 4. Just add all the energies and tell me what the equation, or directly tell me what is the value of Madelung constant you guys are getting. Tell me quick, जल्दी से बताओ, Madelung constant की वैल्यू क्या मिल रही है आप लोगों को? कुछ नहीं करना है, चारों इक्वेशन को बस ऐड कर दो, ऐड ऑल द 4 इक्वेशन। What you have to take the common, -e² upon 4πε0 r, इतना आपको कॉमन लेना है, and the remaining constant which will be left that will be our Madelung constant। क्लियर है? देखो क्या आ रहा है Madelung constant, आई एम राइटिंग हियर, ओके, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इट इज कमिंग 4 and it will be 1 minus 1 by root 2, 1 minus 1 by root 2 and दोनों, okay, this will minus 1 by 2 and plus it will be 2 by root 5, yes plus 2 by root, क्या होगा, माइनस का होगा, माइनस कैसे होगा, माइनस तो यहां पर है, माइनस तो आपने कॉमन ले लिया है, ये प्लस नहीं आएगा ये। अरे भाई जितने जितने भी टर्म्स आ रहे हैं ना उसका अपोजिट साइन ही तो आएगा ना, क्योंकि -e² तो कॉमन में आ गया है,
तो ये माइनस था यहाँ पे, ये यहाँ पे जाके प्लस हो गया है। 2 और 3 दोनों पॉजिटिव थे, 2 और 3 दोनों नेगेटिव हो गए हैं, एंड द फोर्थ इक्वेशन वाज नेगेटिव व्हिच वी हैव गॉट द पॉजिटिव। एवरीवन गेटिंग दिस? अल्फा इज कौन सा स्टेप? अरे बाबा सिर्फ चारों को ऐड कर दो। चलो मैं ही कर देता हूँ, मैं ही कर दूँ। हो गया है कि करूँ? चलो मैं कर देता हूँ, रुको। इसको हटाना पड़ेगा, चलो हटा देते हैं इस डायग्राम को। इस डायग्राम की जरूरत नहीं है ना किसी को? हटा दूं? ओके। अरे सबको ऐड करके -e² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कॉमन ही तो लेना है। चलो कोई बात नहीं, आ रहा है, मैं करता हूँ यहाँ पे। देखो what is our nearest neighbor? This is basically the complete potential energy on one end. This is -4e² upon 4 pi epsilon naught r. What is second? Plus 4e² upon 4 pi epsilon naught, that is √2r. What is third one? Plus 4e² upon 4 pi epsilon naught in the bracket 2r, right? And last one is minus 8e² divided by 4 pi epsilon naught under √5r. यही है, एंड ऑब्वियसली ये होते चले जाएंगे, ठीक है ना भाई? और आगे भी तो टर्म्स आएंगे ना, इनफाइनाइट सीरीज तक जाएगी। ऑलराइट, नाउ जस्ट टेक -e² upon 4 pi epsilon naught r as a common, which what will be left inside? ठीक है ना, 4 को भी कॉमन ले लो, टेक द 4 as कॉमन। यहां से कितना आ जाएगा? 1। यहां से कितना आ जाएगा? -1/√2। थर्ड एक्सप्रेशन से -1/2, एंड फ्रॉम फोर्थ वन प्लस 2/√5 and so on. So this is the value of Madelung constant. यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे। क्लियर है अभी? क्लियर है सभी को? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो बोल सकता है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए कह रहा हूं। अच्छा, आपको ना ये पूरा डेरिवेशन ऑब्वियसली मैंने बता दिया, आप समझ गए होगे, बट अगर आप वैल्यू उसकी लर्न कर लोगे ना, इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू गाइज। क्योंकि अगर वो पूछेगा ना तो वैल्यू ही पूछेगा, दैट टेल व्हाट शुड बी द और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेडलंग कांस्टेंट फॉर वन डायमेंशनल चेन लैटिस, यही पूछेगा वो, ठीक है ना? ऑलराइट, सो लेट्स स्टॉप हियर, इट्स 8 ऑलरेडी, है ना? या फिर चलो थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, कोई नहीं। नाउ अच्छा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, जब इसको सॉल्व किया गया, सो द वैल्यू विच वी गॉट दैट वाज 1.6135। इस वैल्यू वाज 1.6135, इसकी ये वैल्यू थी, ठीक है ना? दिस वाज द वैल्यू, ये इसकी वैल्यू थी। अल्फा इज इक्वल टू 1.6135। ऑलराइट, ठीक है ना? बेसिकली अगर वो पूछेगा ना तो आपसे इस एक्सप्रेशन पे ही पूछेगा, ठीक है ना? ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 3D. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व कंप्लीटली फॉर द 3 डायमेंशनल, हाँ 1.6135, 1.6135, okay? So just write down the 3D crystal. 3D के लिए थोड़ा सा देखते हैं, and I'm not going to means completely derive the things here, and I'm just going to write down the expression. मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे करना है, ठीक है ना? देखो मैं थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूँ आपको। यहाँ पर किया क्या जा रहा है, अगर किसी ने पैटर्न फॉलो किया हो ना, पैटर्न फॉलो किया हो तो वो समझ जाएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। इफ यू टॉक अबाउट द NaCl, अगर हम NaCl की बात करें, द हेडिंग इज 3D क्रिस्टल और 3D आयनिक क्रिस्टल।
Basically what we are doing, we are finding the Madelung constant for the 3D ionic crystal and we are taking the example of sodium chloride. ठीक है ना, इसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल. ऑलराइट. अच्छा देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, या थोड़ा सा ना पैटर्न समझने की कोशिश करो. यू आर आया था, ऑलराइट. यू आर के साथ में एक ये टर्म था माइनस ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में. अब देखो दो चीजें यहाँ पे थी, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं ट्रिक कैसे फाइंड आउट करोगे. इसके साथ में क्या चीजें थी, डिनोमिनेटर में क्या था बताना जरा. डिनोमिनेटर में क्या था सबसे पहले, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, यही था. NND आई एम राइटिंग लाइक दिस, NND दैट इज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. ठीक है. ऊपर क्या था, ऊपर क्या था, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. और यू कैन ऑल्सो राइट नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर. अगर किसी ने पैटर्न फॉलो किया हो ना, ठीक है ना. नाउ ये हो गया किसके लिए, नियरेस्ट नेबर के लिए. सिमिलरली फॉर द सेकेंड नियरेस्ट देखो माइनस ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये था. अगेन यहां पर क्या आया था, सेकेंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, दैट इज SND and multiplied by the number of second nearest neighbor. Okay, number of second nearest neighbor and similarly goes on. यही था ना, यही था भाई. चलो अब इस ट्रिक को जरा NaCl पर अप्लाई करते हैं. किसी को डाउट है यहां पर? ऑल राइट, NaCl पर अप्लाई करते हैं. ओके, टेल मी व्हाट शुड बी द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी टर्म क्या होना चाहिए. सबसे पहले तो दो सुनो, प्लस माइनस अभी छोड़ दो 2 मिनट के लिए, सिर्फ इतने फैक्टर को लो. फर्स्ट राइट दिस फैक्टर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखो अभी देखना, ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना. बट हाँ, इस ये करने के लिए आपको NaCl पता होना चाहिए, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे. ओके, याद करो NaCl, जस्ट take the recall of NaCl structure. The first ion which you were getting as the nearest neighbor, that was the same ion or different ion? Different ion था. सोडियम था तो क्लोरीन मिल रहा था, क्लोरीन था तो सोडियम मिल रहा था, यही था. तो यहां पर साइन माइनस आना चाहिए प्लस आना चाहिए, माइनस आना चाहिए. ओके, व्हाट वाज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, कितनी थी, A/2. कितने नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर थे, 6. चलो हो गया, पहला टर्म आ गया पोटेंशियल एनर्जी का. ठीक है ना. चलो सेकंड की बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन. पहले क्या करना है, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेना है. लिख लिया सर. ओके, प्लस आएगा माइनस आएगा. सेकंड आयन कैसा मिल रहा था, सेम आयन मिल रहा था ना, क्लोरीन को क्लोरीन मिल रहा था, दैट मीन इट शुड बी द प्लस. डिस्टेंस कितनी आई थी, सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, अरे बाबा, A/√2. अरे ऐसे ही आप लोग भूलना शुरू कर दो अभी से. A/√2, अभी तो खत्म भी नहीं हुआ है क्रिस्टलोग्राफी ढंग से. A/√2 आया था. एंड व्हाट वाज द नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट, 12. 12 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. थर्ड पे आओ. ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस आएगा. मैंने बताया था ना, ऑड टर्म्स के लिए अपोजिट आयन मिलते थे ना, सो इट विल बी माइनस हियर अगेन. ये माइनस आएगा, ठीक है ना, दिस विल बी माइनस. व्हाट वाज द थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, √3A/2 था. √3A/2 यहां लिख दो. और कितने थे, कितने नंबर ऑफ 8. यस, √3/2 ही लिखा हुआ है. पूरे पे रूट आएगा,
वो एफसीसी के लिए नहीं था शायद, देखो ध्यान से एक बार। एक बार फिर से देखो जरा। सर वो होगा तो 24 होगा, मतलब वो नहीं है। सोडियम क्लोराइड के लिए थर्ड नियरेस्ट नेबर, कंप्लीट रूट ऑफ 3/2, कंप्लीट रूट ऑफ 3/2, एंड व्हाट इज द नंबर? अरे नहीं बाबा नहीं, कंप्लीट रूट नहीं आएगा, वो थोड़ा सा ना गलत हो गया है ना, दैट रूट 3/2 लिखा है ना मैंने। अरे भाई रूट 3/2 ही होता है, आप लोग 3/2 कंप्लीट रूट कैसे लिख लिए हो? अरे चार्ट को छोड़, चार्ट में कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन जो हमने एनएससीएल किया वहां देखो एक बार, चार्ट को छोड़ो, हो सकता है 2 पे भी रूट है क्या, इतना बता दो बस। नहीं है, एफसीसी के लिए वो होता है जिसके 24 होते हैं, ठीक है ना। आप लोग शायद गलती से लिख लिए होगे, हो सकता है मेरे से ही रूट 3/2 ही होता है, मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात, यही लिखवाया है, हो सकता है मेरे से गलती हो गई, आई एक्सेप्ट इट, बट सही कर लो उसको, ठीक है ना। अंडर रूट 3/2 होता है और 8 थर्ड नियरेस्ट नेबर होते हैं, ठीक है ना। एफ जो आप बता रहे हो ना कंप्लीट रूट ऑफ 3/2, वो 24 होता है एफसीसी के लिए, एनएससीएल के लिए नहीं होता है। क्लियर है, अब उसको सही कर लेना एक बार, ठीक है ना। एंड मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड इट विल गो सो ऑन, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व दिस, बस आ गई सीरीज, आ गई हमारी। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट अ सीरीज, आपको एक सीरीज मिलेगा, ठीक है ना। You will get a series here, and the series will be, I'm writing there, the series will be 6 minus 6 root 2 and मुझे रिकॉल करने दो, इट इज द प्लस 8 by root 3 minus 3, plus 8 by root 3 minus 3 and so on. This is the value of alpha for the NaCl. देख लेना यही आएगा, ठीक है ना, निकाल के देख लेना एक बार सब लोग, ठीक है ना। एंड व्हेन यू सॉल्व दिस सीरीज यू विल गेट द 1.74, जब आपको सॉल्व करोगे ना यू विल गेट अ डेसिमल, द सिंप्लीफाइड नंबर है 1.74 आपको मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, जो भी गलती है उसको सही कर लो। आप बता रहे हो मैंने चार्ट में लिखा, हो सकता है लिखवाया हो, ठीक है ना। देखो जब ऐसी सिचुएशन में फंसो ना, चुपचाप अपनी गलती मान लो, मुझे पता है मैंने सही लिखाया है भाई, अगर गलत लिखाया होता तो एक भी स्टूडेंट सही नहीं लिखता, है ना। बट ठीक है, हो सकता है मेरे से गलती हुई हो, आप उसको सही कर लेना, अरे सही कर लेना ना, बात तो ये है ना, लिखाया नहीं लिखाया उसी क्या बात है, सही कर लेना, ठीक है। ओके सो अरे भैया वही तो कॉमन होता है, वही कॉमन लेना है। क्या आएगा, मतलब सब में 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है। अरे 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 आप एक चीज देखो, आप एक चीज मिस कर रहे हो आई गेस। देखो यहाँ पर मैं समझ गया, यहाँ पर एक 2 का फैक्टर बाहर आ गया होगा आपका, यहाँ पर एक कॉमन में 2 का फैक्टर आ रहा होगा, है ना, ऐसा ही है ना। आप उस 2 को r के नीचे लेकर जाओ भाई, डिनोमिनेटर में ऐसे लिखा था ना, -e² अपॉन 4πε0r, राइट, 2 टाइम्स 6 - 6 √2 और समथिंग प्लस 8 by √3 - 3 एंड सो ऑन, यही था ना। जस्ट डू ऑन दिस, ये r/2 होगा, यस एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। जो नियरेस्ट नेबर आयन था ना उसके बीच का सेपरेशन कितना था, अरे NaCl, अरे लिया तो r था, लैटिस पैरामीटर के टर्म में देखो a/2 आया था,
ये उसी का फैक्टर है, इसी वजह से आ रहा है, ठीक है ना। उसके लिए कंफ्यूज मत हो आप लोग, ठीक है ना, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यही आएगा 6 - 6√2 + 8/√3 - 3, इसको देख लेना, लर्न कर लेना, ठीक है ना। एंड द डेसिमल वैल्यू विल बी 1.74, ठीक है। उसमें जाने की जरूरत नहीं है 2 का फैक्टर कैसे आ रहा है, 2 को नीचे कर दो, r/2 हो जाएगा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस a/2 पे होती है। बस फर्क इतना सा है, तो कंफ्यूजन में बता रहा हूँ क्यों हो रहा है। कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि जब NaCl दिमाग में चल रहा है ना, NaCl में r को हमने रेडियस से रिप्रेजेंट कर दिया था, मतलब रेडियस को r से रिप्रेजेंट कर दिया था। यहां पर हमने डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट कर दिया, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, और कोई बात नहीं, ओके। दिस विल बी योर आंसर, राइट। क्लियर है? Okay, so let's stop here. Tomorrow I will discuss something more about this and we'll solve some question, and then this topic will be over. That is bonding in solid will be over. देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, इस चैप्टर में ना इन दो के अलावा, दैट इज वंडर वॉल्स एंड आयनिक, अपार्ट फ्रॉम दीज टू मीन्स मुझे नहीं लगता कुछ पढ़ने की जरूरत भी है, क्योंकि कोवैलेंट क्या होता है आप सबको पता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है आप लोग 9-10 में पढ़ चुके हो। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहता है और वो सबके साथ शेयर हो जाता है, तो ये चीज लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, राइट। सो आई रिकमेंड यू गाइज only, means only is a means basically a wrong word, means basically focus on the two types of bonding, that is ionic bonding and the van der Waals bonding, ठीक है ना। बस 5 या 10 मिनट का काम और बचा है एंड इट विल बी ओवर टुमारो और डे आफ्टर जब भी क्लास होती है, राइट। सो देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वेदर इट इज फॉर जैम और नेट, जैम वाले तो अपने आप को किनारे ही कर लें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैंने एनालाइज किया ना, तो मुझे पता चले आपके सिलेबस में है ही नहीं, लिखा हुआ है बट कभी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है ना। तो अगर आएगा भी ना, इफ द क्वेश्चन कम्स देन इट विल बी फ्रॉम द बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम सेपरेशन व्हिच वी हैव सॉल्व्ड यस्टरडे। फॉर द नेट एस्पायरेंट, see we have a lot of syllabus to discuss, right? So I don't think it is very feasible for you guys and for the course also that here we are discussing the covalent bond or metallic bond or hydrogen bond. Clear है? ये आप कर सकते हो, ठीक है ना। वंडर वॉल्स बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग, जिसमें मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये सब इन्वॉल्व हो रही थी, वो मैंने करा दिया है। मेडलंग कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट था आयनिक बॉन्डिंग में, वो मैंने करा दिया है। थोड़ा सा और बचा है, वो मैं कल करा दूंगा, जब भी क्लास होगी मैं करा दूंगा। एंड बेसिकली ट्रीट इज एज द चैप्टर हैज बीन ओवर, चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, ठीक है ना। क्लियर है? अगर स्टिल अगर किसी को पढ़ना है सर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है और मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, आई विल सेंड द PDF इन द ग्रुप बाय राइटिंग बाय माई सेल्फ। मैं किसी बुक से नहीं लिखूंगा, खुद से ही लिख के मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। ऑलरेडी ये आप 9, 10, 8, 9, 10, 11 में पढ़ चुके हो, राइट। क्लियर है? इसलिए जो केमिस्ट्री की चीजें हैं ना उसमें मैं नहीं गया, केमिस्ट्री की चीजें आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन कैसे, ये सब मैं नहीं किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो पार्ट था, मेडलंग कांस्टेंट का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, विच वी हैव डिस्कस्ड, राइट, द फिजिक्स पोर्शन, वी डोंट नीड टू गो इन द केमिस्ट्री पोर्शन, राइट। सो कंसीडर दिस चैप्टर हैज बीन ओवर, आई विल डिस्कस, अगर टाइम होता 10-15 मिनट का तो मैं और कर देता, ठीक है ना। सो क्लास एक्चुअली मुझे जाना है ना, ठीक है ना। तो अच्छा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स, ओके। अच्छा मैंने आपको जो 2 क्वेश्चन सेंड किया ना, उसमें से एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, जो अभी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया उससे हो जाएगा। मैं आपको अभी बता दूंगा ग्रुप में, आई विल टेल यू दैट विच क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, एंड अदर क्वेश्चन विल बी सॉल्व आफ्टर द टुमारोज क्लास। जो 10 मिनट का बचा है ना उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो जो एक क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करके रखना, ठीक है, सॉल्व करके एज अ होमवर्क मुझे सेंड करना, राइट, ओके। तो यस, इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? इसके बाद जैम वाले रेस्ट करेंगे, उनका सॉलिड स्टेट खत्म हो गया है, नेट का स्टार्ट होगा लैटिस वाइब्रेशन, ओके ओके, सी यू गाइस, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।